السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں عبدالقیوم، پیش خدمت ہے ہیڈ لائنز۔ تلنگانہ حکومت نے غریبوں میں 11,700 ڈبل بیڈ روم کے مکانات کی تقسیم کا کیا آغاز۔ پرانے شہر میں بھی ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم۔ مجلس صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی اور وزیر داخلہ محمود علی نے کیا 2 BHK کالونیوں کا افتتاح۔ کورٹلہ میں سافٹ ویئر انجینئر دیپتی کی موت مشتبہ نہیں، اس کی چھوٹی بہن اور اس کا بوائے فرینڈ مل کر کیا تھا قتل۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر کسٹم حکام نے 50 کروڑ روپے کے منشیات کو کیا ضبط۔ خاتون مسافر نے چھپا کر لایا تھا 5 کلو کوکین۔ تلنگانہ حکومت نے مستفیدین میں 11,700 ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم کا آغاز کیا۔ تلنگانہ حکومت نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن حدود میں قرعہ اندازی کے ذریعے منتخب مستفیدین میں 11,700 ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم کا ہفتے کے روز آغاز کیا ہے۔ وزیر افزائش مویشیاں سرینواس یادو نے میڈچل ضلع کے قطب اللہ پور کے بہادر پلی کی ڈبل بیڈ روم کالونی کا افتتاح کیا، جہاں پر 1700 مکانات ہیں۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا کہ گاجولہ رامارم علاقے سے تعلق رکھنے والے 144 مستفیدین، سنت نگر سے 500، کوکٹ پلی سے 500 اور سکندرآباد کنٹونمنٹ علاقے سے 200 مستفیدین کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس موقع پر حلقہ اسمبلی قطب اللہ پور اور حلقہ اسمبلی کوکٹ پلی کے ارکان اسمبلی وویک اور مادھاورم کرشنا راؤ، GHMC کمشنر رونالڈ روز اور حیدرآباد کلکٹر انودیپ درشٹی و دوسرے موجود تھے۔ సూపర్ అమ్మాయి చూడమ్మా ఒకసారి। లబ్ధిదారులు సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ నుంచి పి శ్రద్ధ గారు, ఎం పద్మావతి గారు, సర్వరి బేగం గారు, వాళ్ళకి మైగిరే సర్వరి బేగం గారు। آدتیہ L1 کی کامیاب پرواز، اسرو کے سائنسدانوں کو چیف منسٹر KCR نے مبارکباد پیش کی۔ اسرو کی جانب سے آدتیہ L1 اسپیس کرافٹ کو کامیابی کے ساتھ لانچ کیے جانے پر چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اسرو کے سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کی۔ KCR نے کہا کہ اسپیس کرافٹ کو کامیابی کے ساتھ داغا جانا خلائی تحقیق کے شعبے میں ہندوستان کو حاصل ہو رہی اہمیت کا آئینہ دار ہے اور اس طرح اسرو کی ٹیم نے ایک اور سنگ میل عبور کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے خلائی سائنسدانوں نے عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے، جس پر ہر ہندوستانی کا سر فخر سے اونچا ہو گیا ہے۔ انہوں نے صدرنشین اسرو سائنسدانوں اور دوسرے اراکین کو اس کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے مستقبل میں مزید کامیابیوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے، آج 11:50 دن اسرو کی جانب سے اسپیس کرافٹ آدتیہ L1 کو کامیابی کے ساتھ داغا گیا۔ 1:04 پر آدتیہ L1 سے علیحدہ ہو گیا اور مقرر کردہ مدار میں داخل ہو گیا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ہفتے کے روز پرانے شہر میں بھی ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم کا آغاز ہوا۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے بہادرپور ڈویژن اور چندرائن گٹا ڈویژن میں ہفتے کے روز ڈبل بیڈ روم کے مکانات کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محمد محمود علی اور بیرسٹر اسدالدین اویسی نے مستفیدین میں 270 ڈبل بیڈ روم مکانات تقسیم کیے۔ فاروق نگر میں 2 BHK
हाउसिंग कॉलोनी के इफ्तिताह के प्रोग्राम में बहादुरपुर रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान और MLC मिर्ज़ा रहमत बेग व दूसरे मौजूद थे। महाजबीन फारूक नगर बाकी है और अभी रिसीव कर रहे हैं। रानी बी शोभा रानी किशन बाग के रहने वाले हैं। बी शोभा रानी, नुसरत जहान, नाजिया बेगम GHMC हदूद के कोल्लूर और अमीनपुर में 2 BHK हाउसिंग कॉलोनी के इफ्तिताह के मौके पर रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत शिरकत की और खिताब करते हुए BRS हुकूमत में अवाम को दी गई सहूलियात का जिक्र किया। वज़ीर आला KCR की सताइश की। इस मौके पर इन्होंने कांग्रेस और BJP को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस और BJP हमेशा धरने देते हैं और काम नहीं करते। इन्होंने कहा कि KCR के इक़्तिदार में जिन लोगों ने डबल बेडरूम वाले घर लिए हैं वो खुश हैं। आप 1 रुपया खर्च किए बगैर 60 लाख मालियत के घर के मालिक हैं। KCR को गरीब लोगों को एक कीमती जगह पर मकानात देने का सहरा जाता है, ऐसे इलाके में जहां अमीर रहते हैं। इन्होंने कहा कि हम पूरे हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात दे रहे हैं। इन्होंने इस मौके पर KCR की तारीफ़ करते हुए कहा कि KCR CM एक ऐसे शख्स हैं जो हिंदू, मुस्लिम और ईसाई जैसे तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। लाख डबल बेडरूम घर बना के आज घरों में भिजा रहे। आज एक ही दिन 11,700 नए डबल बेडरूम का घर आपको हैंड ओवर कर रहे। अभी तक हैदराबाद में आप लोग जानते हैं 4,060 मकान अभी तक डबल बेडरूम बना के दे चुके हैं। आज एक ही दिन 11,700 मकान आप लोगों को दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये लास्ट नहीं है, आगे भी देंगे, ये हर महीना देंगे। आज हैदराबाद में अपने CM KCR साहब, अपने म्युनिसिपल मिनिस्टर KTR साहब ने बहुत ही टाइम देके 9,000 करोड़ रुपया खर्च करके 1 लाख डबल बेडरूम घर बनाए हैं। ये 1 लाख में आज सिर्फ 11,700 दे रहे। हर महीने क्या है, नया घर बनाए तो उसमें थोड़ा पानी का देखना, बिजली का देखना, लिफ्ट काम कर रहा नहीं देखना, ये पूरा संभाल के देना पड़ता। एक ही दिन 1 लाख दिए तो फिर कुछ कहीं पानी नहीं मिलता, कहीं बिजली नहीं आता, कहीं तकलीफ आपको नहीं आना बोल के एक महीने में 10-11 हजार देते जाएंगे। ये नहीं कि ये प्रारंभ है, आगे हर महीने भी आपको घर मिलते जाएगा। ये अपोजिशन वाले का कुछ काम नहीं करते ये लोग, ऐसे लोगों के बात सुनना नहीं, जो काम कर रहे हैं KCR साहब के साथदार देना चाहिए। ఈరోజు ప్రతిపక్షాలు అనేక రకాల మాటలు చెప్తా ఉంటారు। मजलिस पार्टी हल्के असम्बली नामपल्ली के MLA जाफ़र हुसैन मेराज ने GHMC हदूद के तहत कोल्लूर और अमीनपुर में 2 BHK हाउसिंग कॉलोनी के इफ्तिताह के प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में तेलंगाना रियासत के वज़ीर हरीश राव और मजलिस पार्टी हल्के कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन, BRS पार्टी के हल्के खैरताबाद के MLA D नागेंदर, BRS जुबली हिल्स के MLA गोपीनाथ व दीगर को भी देखा जा सकता है। हिसाब से कहना चाहता हूँ 30,000 हाउसेस तो आप बना लिए हैं, हमारे वोटर्स भी आपके पास आ गए। आपको काबिल मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि आपको अब कोई भी हरा नहीं सकता है, क्योंकि आप जहाँ हैं वहीं से ही आपकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ये 30,000 हाउसेस के जो वोटर्स रहेंगे तो यूँ समझो कि आपको 1 लाख सबसे पहले वोट मिलेंगे, उसके बाद में बाकी चीजों के लिए रहेगा। तो मैं आज पब्लिक के अंदर ये बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन है
क्या ये सिर्फ 500 लोगों का जो ड्रा हुआ है इन्हीं को मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूं, अब साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से 500 करके सीएम साहब और हरीश राव साहब, फाइनेंस मिनिस्टर भी रिलीज करते रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि सबको मिलने वाला है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, जिसको घर नहीं है उसको घर मिलेगा है। ఈ రోజు ఇంతమంది ప్రజలు వచ్చినటువంటి तेलंगाना के इन 20 अजला में इतवार से मंगल तक शदीद बारिश के इम्कानात। हैदराबाद में आज और कल बारिश की पेशकशी की गई है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने ऐलान किया कि इतवार से मंगल तक रियासत के शुमाली और जनूबी अजला में दरमियानी से भारी बारिश होगी। 20 अजला के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि हफ्ते को कुछ अजला में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के बायस बारिशें होंगी। के नागारत्ना डायरेक्टर महकमे मौसमियात हैदराबाद ने कहा कि इतवार को हैदराबाद के बाज़ इलाक़ों में हल्की से दरमियानी बारिश के इम्कानात हैं। सुबह की धुंध पाए जाने के इम्कानात हैं। जिन 20 अजला में इतवार से मंगल तक 3 दिनों तक बारिश के इम्कानात हैं, इनमें आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगित्याल, सिलसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, वरंगल, हनमकुंडा, जिंगांव, सिद्दीपेट, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी और कोत्तागुड़म शामिल हैं। सड़कों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी ने इंतबाह दिया है। मेयर हैदराबाद टैंकमेंट पर स्वच्छ ऑटो ड्राइवर्स में रेन कोट, दस्ताने और दीगर अशिया तकसीम कर रही थी। इन्होंने कहा कि ऑटो ड्राइवर्स को अपनी ज़िम्मेदारी को पेश नज़र रखते हुए कचरे की निकासी में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहिए। मेयर ने इंतबाह दिया कि जो लोग सड़कों पर कचरा फेंकते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा कि ऑटो ड्राइवर्स की सेहत को महफूज रखते हुए इन्हें दस्ताने और टी शर्ट ड्रेस कोड के साथ तकसीम किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हैदराबाद स्वच्छ सुरक्षा की रैंकिंग में पहले नंबर पर है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस की रुकन क़ानून साज काउंसिल के कविता ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना में बीजेपी कहीं नहीं है और इनके वालिद के चंद्रशेखर राव तीसरी बार वज़ीर आला बनना यकीनी है। इन्होंने कल शब हैदराबाद में अपनी रहायशगाह जगित्याल ज़िले के बीआरएस लीडरों और कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता इंतखाबात में जब जगित्याल ज़िले पर बीआरएस का झंडा लहरा रहा था तो इन्हें बहुत खुशी हुई थी। इन्होंने इस मरतबा भी पार्टी के रुकन असम्बली संजय कुमार की कामयाबी को यकीनी बनाने कारकुनों पर जोर देते हुए कहा कि संजय ने कोरोना के दौरान खुसूसी खिदमत अंजाम दी थी, जिसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। हैदराबाद के ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स के पास दरख्त गिरने के नतीजे में एक ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। हफ्ते के रोज़ ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स से गुजरने वाले ऑटो पर एक बड़ा दरख्त गिर पड़ा। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर गौस की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। हादसे के बाद इस मसरूफ़ तरीन सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गई। इत्तला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस और जीएचएमसी के हुक्काम ने वहां पहुंचकर सड़क से दरख्त को हटाया और जिसके बाद ट्रैफिक बहाल हो गई। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर की हलाकत की इतलात हैं। अलबत्ता ज़ख्मियों का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। ये मालूम नहीं हुआ कि हादसे के वक्त ऑटो में मुसाफिरीन सवार थे या नहीं। मुताल्लिक़ा पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। ऑटो ड्राइवर्स की नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जना हॉस्पिटल के मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। फौरी तौर पर इस बात का पता नहीं चल सका कि यह हादसा किस तरह पेश आया, क्योंकि शहर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश भी नहीं हुई। दिन में बराबर रुपये
अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया का कौमी सतह का प्रोग्राम 2 अक्टूबर से शुरू होगा। रियासत बिहार के वज़ीर आला और जनता दल यूनाइटेड JDU के सीनियर लीडर नीतीश कुमार ने आज कहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इनक्लूसिव सिविलाइजेंस इंडिया के इस प्रोग्राम को कौमी सतह पर नाफिज करेगा। ये 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का यौम पैदाइश से शुरू होगा। नीतीश कुमार ने हफ्ते को यहाँ बिहार के साबिक़ वज़ीर आला अंजनी दुर्गा प्रसाद राय के यौम पैदाइश पर मुनक़िद रियासती तक़रीब के बाद अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कल मुंबई में इंडिया इत्तेहाद की एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ईद मिलादुन्नबी की तातील का ऐलान किया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक 28 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी की तातील रहेगी। चंद दिन पहले ही माह सितंबर में बैंकों की तातीलात का ऐलान करते हुए 28 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी की तातील का भी ऐलान किया गया था। इसके बाद अब रियासती हुकूमत की जानिब से ईद मिलादुन्नबी की तातील का ऐलान किया गया है। तेलंगाना के कोरटला टाउन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीप्ति की मौत मुश्तबा नहीं बल्कि इसकी छोटी बहन चंदना और इसके बॉयफ्रेंड शेख उमर ने मिलकर गला घोंट कर कत्ल कर दिया। जगतियाल ज़िले SP भास्कर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दीप्ति की छोटी बहन चंदना की इंजीनियरिंग की तालीम के दौरान अपने क्लासमेट शेख उमर से मोहब्बत हो गई थी और ये दोनों इंजीनियरिंग की तकमील के बाद शादी करने का फ़ैसला किया था और इसके लिए रकम की ज़रूरत थी। ज़िले SP भास्कर ने कहा कि 28 अगस्त को चंदना के घर वाले हैदराबाद गए हुए थे और घर में चंदना और इसकी बड़ी बहन दीप्ति थी और चंदना ने हैदराबाद में रहने वाले शेख उमर को इसकी इत्तला दी और बताया कि घर में रकम और सोना भी मौजूद है, जिस पर उमर हैदराबाद से कार में कोरटला पहुंच गया और रात देर गए। चंदना ने दीप्ति के सो जाने के बाद उमर को घर बुलाया। उमर और चंदना ने अलमारी में मौजूद सोना और रकम ले रहे थे कि आवाज़ सुनकर दीप्ति की नींद हुशार हो गई और गड़बड़ शुरू कर दी, जिस पर चंदना और उमर ने इसका गला घोंट कर कत्ल कर दिया और वहां से फ़रार हो गए। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ़्तार कर लिया और मज़ीद पूछताछ जारी है। इस केस में मज़ीद 2 अफराद को मुल्ज़िमीन बनाया गया है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम ने 50 करोड़ रुपए की मंशियात को जब्त किया। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सूटकेस में छुपाकर लाई गई मंशियात को DRI के अहदेदारों ने जब्त कर लिया। इन 50 करोड़ रुपए की मालियत की 5 किलो कोकीन को एयरपोर्ट पर चौकस DRI के अहदेदारों ने एक इत्तला पर जब्त करते हुए एक खातून को गिरफ़्तार कर लिया। इस ममनुआ शय को काफ़ी एहतियात के साथ छुपा कर लाया गया था। मिस्र के अरबपति मोहम्मद अल-फाइद का इंतकाल हो गया। 94 साला मोहम्मद अल-फाइद खराबी सेहत के बायस इंतकाल कर गए। मिस्र में पैदा होने वाले अल-फाइद ने सबसे पहले फिज़ी ड्रिंक्स फ़रोख्त करने का कारोबार के शोबे में कदम रखा। बाद में सिलाई मशीनों के सेल्समैन के तौर पर काम किया। इसके बाद इन्होंने रियल इस्टेट, शिपिंग और कंस्ट्रक्शन में कदम रखा। अगरचे इब्तदाई तौर पर मशरिक़ वस्ता में कारोबार शुरू किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो यूरोप तक फैल गए। इन्होंने पेरिस में होटल कायम की थी और फ्रांस ने इन्हें कारोबारी शोबे में खिदमत के सिले में आला तरीन अवार्ड से नवाजा था। दरी असना 1997 में मोहम्मद अल-फाइद के फर्जंद डूडी अल-फाइद बरतानिया के शहजादी डायना के साथ कार में सफ़र के दौरान एक हादसे में हलाक हो गए थे, लेकिन मोहम्मद अल-फाइद ने अपने बेटे को डूडी अल-फाइद की मौत के लिए डायना के शोहर प्रिंस फिलिप को ज़िम्मेदार करार दिया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि डायना डूडी अल-फाइद के बच्चे को जन्म देने वाली थी। ये जानने के बाद इसे कार हादसे के नाम पर कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद अल-फाइद ने यह दावा करते हुए एक तवील मुद्दत तक अपने बेटे की मौत पर क़ानूनी जंग लड़ी कि डूडी अल-फाइद की मौत के पीछे बरतानवी शाही ख़ानदान का हाथ है, लेकिन मुनासिब सबूत न होने की वजह से ये केस अदालतों में ना चल सका। अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।